Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. Right. So, what's up? Any progress from any one of you? Hello? Is there any progress from any one of you? No, yesterday's topic, there is no progress. And what about day before yesterday? So that I showed you that day, no, sir. What is so after that there is no progress from your side, right? No. Okay. Anyone else? All right, guys. Not an issue. Up to you guys to. Okay. Today we'll be talking about affiliate marketing and sometimes affiliate marketing is a new business opportunity for individual provided they work on its promotion and they get something rewarded from the companies whose affiliate or whose associate you will be. So as the terminology define that affiliate is basically you are linked with. So if you sell someone else product, you get some commission out of it. You get some portion of income that e-commerce portal actually generates. Say for example, if you are an affiliate of Amazon and you any sale that happens because of the promotion that you are doing on any other platform, social media or anywhere else, and if there is a sale that happens, there is a possibility you will get some pie, you will get some cut, right? So that we call it affiliate marketing. And it's not only Amazon and Flipkart, there are many more companies who are offering affiliate programs. So we have to understand what is affiliate programs and how we can actually get benefited out of it. So we understand how internet has actually changed our life. And if we talk about three necessities of life, air, water, and after air and water, we understand that its next important big thing is internet. Good. And especially when we talk about COVID-19 and lockdown, it has made the business to grow digitally. Right? It has made the business to grow digitally, and dependency on online businesses has increased almost 300 to 400%. So there are various things that we can look into if we learn proper digital marketing and start promoting stuffs in and around. अगर हम सही से डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और इन चीज़ों को अगर हम प्रमोट करना शुरू करते हैं, which could not be a part of your business, but at least we start promoting it after you join affiliate programs of various platforms, probably there is a possibility we'll start making it, right? So let's understand what is affiliate marketing. Right?
is a type of digital marketing where you earn commission money whenever you refer a person to buy any product online or services online based on your recommendations. Right? So you recommended someone. It happens in any businesses कि अगर आप किसी के बिजनेस को रेफर करते हो और उसको मॉनेटरी बेनिफिट होता है, जैसे आप रियल एस्टेट की बात कर लें कि अगर कोई एजेंट है और उसके जरिए से अगर कोई सेल होता है, कोई फ्लैट बिकता है या कोई प्लॉट बिकता है या कोई अपार्टमेंट बिकता है, तो वहां पे क्या होता है, that particular agent gets commission from the person who owns the building at the same time, any other means if there is a possibility. Okay, तो उसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग है जहां के डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है या मीडियम है जिसमें अगर आप किसी और के प्रोडक्ट को रेफर करते हो और उसकी वजह से सेल होता है, then you get some commission out of it. So that is what it is called, affiliate marketing. Now let's understand how does affiliate marketing works in India. There are various open platforms, open affiliate marketing platforms. So what you have to do, you have to go on Google. आपको Google पे जाना है और वहां जाके आप good affiliate programs करके आप सर्च कर लीजिए. You will get enough of links to sign up affiliate programs, but see the reviews कैसे हैं. जैसे आप Amazon, Flipkart या किसी भी प्लेटफॉर्म पे परचेज करने जाते हैं, ई कॉमर्स साइट पे परचेज करने जाते हैं, तो वहां आप परचेज करने से पहले आप सेलर के रिव्यूज को देखते हैं. तो वैसे ही आप सेलर्स के रिव्यूज को देखिए, लोग क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसके बाद आप उसके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इसके अंदर रीसेलर क्लब है. रीसेलर क्लब इज बेसिकली मेंट फॉर वेब होस्टिंग. Amazon हम सब जानते हैं, फ्लिपकार्ट जानते हैं, उसी तरह से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म. आपको क्या करना है, जैसे आप जैसे साइन अप करना होता है, साइन अप के लिए कोई भी लिंक आता है, वहां पे आप जाके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप पिक करते हैं और वंस यू साइन अप यू विल रिसीव एन एफिलिएट लिंक दैट यू कैन यूज इन योर ब्लॉग. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी प्लेटफॉर्म के एफिलिएट प्रोग्राम को जब आप साइन अप करते हैं तो आपको वो एक लिंक देता है कि इस लिंक के जरिए से ही आपको प्रमोट करना है, वो कोड आपको यूज करना है, रेफरल कोड आपको यूज करना है. तो जैसे मैंने आपको विक्स पे साइट बनाने के लिए बताया है, उसी तरह से अगर आप चाहें तो विक्स पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या विक्स के ऊपर ही आप साइट बना के और इस एफिलिएट कोड को यूज करते हुए उस प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट करें. जब आप प्रमोट करेंगे, बहुत ज्यादा मार्केट करेंगे, तो स्लोली क्या होगा, ट्रैफिक बिल्डअप होना शुरू होगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपका कुछ सेल भी, कुछ सेलिंग भी आपका शुरू हो सकता है. राइट. तो जैसे थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, क्रिएट ए ब्लॉग और वेबसाइट विद अ क्वालिटी कंटेंट. चूंकि क्वालिटी कंटेंट होना जरूरी है, तभी गूगल आपको वेटेज देगा. और उसके बाद आप चाहें तो इसको पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं. आप फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं, आप गूगल पे प्रमोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे प्रमोट कर सकते हैं. जैसे भी आपको प्रमोट करना है, आपका काम यह है कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्डअप करें, और ट्रैफिक बिल्डअप करने के बाद अगर कोई वहां से परचेज करता है तो आपको कुछ कमीशन आ जाएगा. ये कमीशन के वेरिएशंस रहते हैं, ये मंथली भी आता है, या फिर ये रहता है कि भाई एटलीस्ट आप 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए जब आपका जमा हो जाता है तब वो आपके अकाउंट में आता है. तो हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग नॉर्म होता है. ठीक है. उसी तरह से आपको क्या करना है, मार्केट द प्रोडक्ट एंड शेयर योर एफिलिएट लिंक ऑन सोशल मीडिया एंड ब्लॉग etc, जैसे मैंने बताया. और उसके बाद स्लोली आप क्या करेंगे, आप स्लोली आपका कमीशन इंसेंटिव जो है बनना शुरू हो जाएगा, विच विल बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लाखों और करोड़ों बना लेंगे, बट थिंग इज लाइक इफ यू कीप ऑन डूइंग इट, यस यू विल बी एबल टू अर्न रिमार्केबली गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अब इसके अंदर हम अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम एफिलिएट प्रोग्राम को अगर हम चुनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा. जैसे मैंने कहा कि कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम को चूज करने के बाद या चूज करने से पहले आप गूगल में या कहीं और भी उसके रिव्यूज को देखें कि उसका रिव्यू कैसा है. राइट. सो एग्जामिन द एडवर्टाइजर वेबसाइट. जिसका भी आप एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसकी वेबसाइट को एग्जामिन कीजिए, एंड देन उसके रिलायबिलिटी और रेपुटेशन को भी आप रिव्यू करिए. ठीक है. उसका आप लिंक्डइन पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, गूगल पे रिव्यूज देखिए, लोगों के कमेंट्स देखिए, कोरा के ऊपर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो लोग
उसके बारे में बताते हैं। फिर उसी तरह से पेमेंट ऑप्शंस, वो कितना फ्रीक्वेंटली आपको पे करते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे आप MLM का कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, कि लेफ्ट और राइट बैलेंसिंग करते 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 ही आदमी परेशान हो जाता है और वो अप्रोप्रिएट कमीशन अर्न नहीं कर पाता। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, आपको खुद वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर्विसेबिलिटी देखना है कि जो आप सर्विस या प्रोडक्ट की बात देख रहे हैं उसका डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, और वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस देखना है, हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज, कि लोगों को जो प्रोडक्ट आप पुश करना चाहते हो वाकई इट इज गोइंग टू ब्रिंग वैल्यू टू देम, बिकॉज अनलेस अंटिल इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग वैल्यू पीपल विल नॉट परचेज इट। तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस भी देखना है, आपको मार्केट सैचुरेशन भी देखना है। ऐसा ना हो कि ऐसे प्रोडक्ट को चूज करें जिसका कोई खास डिमांड नहीं है, राइट। उसी तरह से आपको एफिलिएटर का जो एग्जामिनर जो एडवर्टाइजिंग है उसकी भी पॉलिसीज को आपको देखना है, उसके नॉर्म्स को देखना है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसको थॉरोली आपको समझना है। फिर उसके बाद पे आउट्स एंड कमीशन के क्या इंटरवल्स हैं वो भी देखना है। एंड देन फाइनली क्या आपका कमीशन रेकरिंग है या वन टाइम एक बार आ गया उसके बाद नहीं आ रहा। तो आपको ये सारी चीजें देखने के बाद, वैलिडेट करने के बाद ही आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करें। यहाँ पे कुछ एक 20 के आसपास मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है। मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सो दैट आप लोगों के पास ये रिपोजिटरी फॉर्मेट में रह जाए और आप जब भी चाहें इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि वेबसाइट्स के अंदर अमेजॉन का है, फ्लिपकार्ट का है, रीसेलर क्लब ये एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, वी कमीशन ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के सेल के ऊपर जो है ये कमीशन देता है। GoDaddy इज डोमेन होस्टिंग, डोमेन बुकिंग एंड होस्टिंग सर्विसेज। ट्रिप एडवाइजर क्या है? ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल से रिलेटेड साइट है। उसी तरह से ऑप्टिमाइज है, क्यूब लिंक्स है, होस्ट गेटर, बिग रॉक, ये सब ये जो 20 यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट्स दिए पॉपुलर इंडिया के अंदर पॉपुलर एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको कि आप साइन अप कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप ढंग से आप इसके ऊपर काम करना शुरू किए, अगर किसी का ट्रैवल से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो ट्रैवल के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे, किसी को प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ज्वाइन कर सकता है, कोई और किसी और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता है तो इन सब की वेबसाइट पे जा सकता है। नॉट ओनली दीज 20, देयर आर मेनी मोर, हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स आर देयर हु आर ऑफरिंग एफिलिएट प्रोग्राम। सो हमें क्या करना है, उनको हमें देखना है। यू कैन ज्वाइन एनी गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एफिलिएट प्रोग्राम and generate good residual income, and that too by promoting them digitally, right? So need not to go door to door knocking नहीं है, door to door meeting नहीं है, एक दूसरे को बुला के वहां पे मीटिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। So what you have to do, you have to actually build up your own blog or website with quality content, and that will happen eventually over a period of time. So what you have to do, टेक अवेज क्या है, आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। एक चीज ये है कि आपको ब्लॉग्स या वेबसाइट बनाना होगा, या फ्री ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना डोमेन लेके प्रॉपरली आप इसको होस्ट कर सकते हैं। जैसे आप विक्स पे देख रहे हैं बार बार वो पुश कर रहा है कि अगर आप डोमेन परचेज कर लेते हैं, तो अब अगर आप रियली सीरियस हैं तो आप डोमेन परचेज करके उसके साथ कनेक्ट करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और एक बार जब आपने साइट बना लिया तो अवेयरनेस आपको क्रिएट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जिसका आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये आप ही को अपने 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 बिजनेस को प्रमोट करना है। इन द सेंस ये ऐसा है कि जैसे आपने अपनी दुकान और अपनी कंपनी खोला है और आप ही को मार्केट करना है, राइट। सो उसके लिए क्या करना है, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है एंड कीप पुशिंग, कीप कम्युनिकेटिंग विद द विजिटर्स। आपको कंटिन्यूसली इस चीज के ऊपर काम करना है। जैसे मैंने कल बताया, उससे पहले भी, कि आपको एक एक्सेल शीट मैंने शेयर किया और 3 एक्सेल शीट मैंने शेयर किए, वो क्लासिफाइड का भी है, वो सोशल बुक मार्किंग का भी है। तो आप अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करके इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप पुश करना शुरू करें, और अगर कोई कमेंट करता है, कोई विजिटर आप तक पहुंचता है तो उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू करें। जैसे फेसबुक पे अगर कोई लाइक करके या कमेंट करता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें। कीप वर्किंग हार्ड, दिस इज द क्रक्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम।
No affiliate program, none of the affiliate program will give you immediate income at a spot. You have to work hard. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपके एफिलिएट प्रोग्राम से इनकम जनरेट नहीं होगा. एंड ट्रैफिक इज बेस ऑफ डॉलर मींस जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे उतने ही ज्यादा चांस है कि आपकी वेबसाइट से सेल होना शुरू होगा. और ब्रिंग ट्रैफिक को लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ करना है. राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं. राइट. सो इट इज अ प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट्स बायर एंड सेलर एट वन प्लेस. ठीक है. अब ये सारे चैनल्स हैं जिसके जरिए से आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो. राइट. वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो ईमेल मार्केटिंग है, जैसे हम लोगों ने मेल चिप को देखा, या हमने जो है ऑनलाइन डिस्प्ले की एड की बात की, या फिर हमने रिव्यूज की बात की. तो ये सारी चीजों के जरिए से आप प्रमोट कर सकते हो. राइट. और इसका कोई अंत नहीं है, ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा. दीज आर द प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग. जितना आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो, बिकॉज व्हाट्सएप इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मार्केटिंग चैनल इन टुडेज सिनेरियो. आप देखते हो कि लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस को यूज करते हैं और फिर वहां से वो बिजनेस को जनरेट करते हैं. राइट. तो ये क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड अगर हम देखें कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका टाइम अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. राइट. तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये यहाँ तक की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको पॉपुलर एफिलिएट चैनल्स इन इंडिया, ये आपको गूगल पे सर्च करना है. उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उससे रिलेटेड जो कंपनीज एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं उसको आइडेंटिफाई करके अपने आइडेंटिफाई करना है, उसको साइन अप करना है. फिर आपको या ब्लॉग या फ्री वेबसाइट्स जो भी है या पेड वेबसाइट्स हैं, आप उसको क्रिएट करके उसके साथ उन प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके एफिलिएट कोड वाले लिंक को यूज करते हुए आप वहां पे काम शुरू करेंगे. एंड देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन टर्म्स ऑफ जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं वो आपको करना है. और जैसे डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटी है, आपको अगर बैनर बनाना है तो ऑलरेडी हम लोगों ने उसको देखा है कि आप कैनवा पे बना सकते हैं. आपको वीडियो बनाना है तो भी आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया है, वेबसाइट को प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने. उसी तरह से और भी जो चीजें हैं उन सारे स्टेप्स को आपको वर्कआउट करना है टू रन इफेक्टिव एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम. Not only that, you have to continuously write good content on your blog, because लोग जब तक आपके कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट से आके कोई भी चीज नहीं खरीदने वाले हैं. राइट. तो आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहना है. और फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट या लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को आपको यूज करते हुए अपने वेबसाइट के लिंक को प्रमोट करना है. You have to bring more and more number of visitors to your website and you have to continuously keep on doing. ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने करें और आपको बहुत थोड़ा सा इनकम आया आप छोड़ दीजिए. राइट. यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क, और एटलीस्ट आपको 6 महीने तो काम करना पड़ेगा टू स्टार्ट अर्निंग रिमार्केबल गुड अमाउंट ऑफ मनी. ये फैक्ट है. और इसके रिव्यूज को आप देख के कौन कौन सा होता है. तो ये बेसिक सिनेरियो है एफिलिएट मार्केटिंग का. नेक्स्ट, इसके बाद आज जो हम लोग दूसरा टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो हम ये है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर आप कोई प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करके वहां पे कैसे आप बेच सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप कैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जाके उसको लिस्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको मार्केट कर सकते हैं.
कैसे परचेज करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, कैसे हम मार्केट करते हैं उसके बारे में हमको सोचना और समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आप अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बेचना चाहते हैं, इट शुड बी अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, यानी वो रजिस्टर्ड बिजनेस का होना मस्ट है, ठीक है। देन ओनली यू कैन रजिस्टर एज ए सेलर ऑन फ्लिपकार्ट और अमेजोन। जो प्रोसेस फ्लिपकार्ट का है मिलता जुलता ही वैसा ही प्रोसेस अमेजोन का है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, राइट। सबसे पहली चीज क्या है कि जो फ्लिपकार्ट पे कोई भी कंपनी या अमेजोन पे कोई भी कंपनी, अभी हम फ्लिपकार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हम फ्लिपकार्ट को डिस्कस करेंगे। व्हाई पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट, तो उसका आंसर ये कहता है, उसका ये है कि भाई ट्रैफिक, जैसे हम लोगों ने एफिलिएट के स्लाइड में देखा कि यू हैव टू वर्क टू बिल्ड ट्रैफिक टू मेक श्योर दैट सेल्स शुड हैपन। अब फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे क्या है कि वहां पे आपको ट्रैफिक बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां पे लाखों लोग हर दिन ज्वाइन उस वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं, राइट। तो इतना बड़ा जब ट्रैफिक वहां पे आ रहा है तो आपको करना क्या है, आप उन प्लेटफॉर्म्स पे एज ए सेलर ज्वाइन करते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि फ्लिपकार्ट ने अपना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना एक ब्रांड रेपुटेशन प्लेटफॉर्म का बना लिया है कि अगर कोई परचेज करता है, कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ गड़बड़ होता है तो आप रिटर्न कर सकते हो, देयर इज अ रिप्लेसमेंट मॉडल, योर मनी इज सेफ, राइट। तो इस तरह से क्या है कि भाई अगर लोगों का ये ट्रस्ट बना हुआ है कि भाई लोग फ्लिपकार्ट पे आते हैं, परचेज करते हैं एंड दे फील दैट दिस इज द राइट प्लेस वेयर गुड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। तो लोग आते हैं और उनका ट्रस्ट बना हुआ है तो वो आके सीधा सीधा खरीदते हैं। दे डोंट, इवन इफ अ न्यू वेंडर ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, लोग आते हैं और वो खरीद लेते हैं। रीजन इज दे ट्रस्ट फ्लिपकार्ट, दे डोंट ट्रस्ट सेलर्स, दे ट्रस्ट फ्लिपकार्ट और वहां पे जाके ये करते हैं। ट्रस्ट फॉर सेलर कम्स जब उसका रिव्यू आ जाता है, उसकी बाकी चीजें आती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू के इमीडिएट आपका पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन के लिए आपको बैंक के पीछे भागना नहीं पड़ता। फ्लिपकार्ट ऑफर्स अ वे जहां कि आप अपने पेमेंट डिटेल को आप इंटीग्रेट कर दें और जो भी सेल होगा, जो भी आपका अमाउंट बनेगा वो आपके अकाउंट में आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉजिस्टिक्स के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट हैज देयर ओन चैनल जो कि उनका लॉजिस्टिक्स पार्टनर आके सेलर के प्रोडक्ट को पिक करता है और बायर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, राइट। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं क्यों लोग फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आके बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन द सेंस मोबाइल ऐप ऑफ फ्लिपकार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज फ्रॉम बायर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। बायर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्ट्रॉन्ग है आप और हम जानते हैं। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होता है ये ट्रिगर इमीडिएटली सेलर को जाता है उसके मोबाइल ऐप पे। अगर वो अपने प्राइस को कुछ चेंज करना चाहता है तो इंस्टेंट प्राइस चेंज कर सकता है। अगर किसी प्रोडक्ट को उसे ड्रॉप करना है यानी डिसकंटिन्यू करना है तो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर सकता है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है, उसको रिप्लेस करना है, एडिट करना है, कुछ भी करना है तो आप मोबाइल से करके अपलोड कर दीजिए, वो सेव हो जाता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट अवेलेबल है जो कि सेलर्स को सपोर्ट करता है अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो। ये वाई टू सेल ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स टू बिकमिंग अ फ्लिपकार्ट सेलर, क्या क्या स्टेप्स उसको करना पड़ता है अगर वो फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर साइन अप करता है तो। सबसे पहली चीज ये है, जैसा मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए ये कंपलसरी है कि यू शुड बी अ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है कि या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एलएलपी है या लिमिटेड कंपनी है, ये तो हम सब जानते हैं। दूसरा प्रोप्राइटरी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो आपको सर्विस टैक्स के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है, राइट। सो यू शुड बी अ बिजनेस एंटिटी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, टिन नंबर, टैन नंबर एंड देन जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें आपको रजिस्टर होना जरूरी है। देन यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट, ऑफ कोर्स जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। फिर रजिस्टर विद फ्लिपकार्ट, राइट, एंड देन फाइनली यू स्टार्ट सेलिंग।
ठीक है, तो ये एक 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट का प्रोसेस इंगेज है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, ये पूरे साइकिल के प्रोसेस को रेडी करके एक्टिवेट करके बहुत फास्ट ट्रैक पे किया जाए तो भी आप कर सकते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप ये मान के चले कि ये सारी चीजों को होते 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 कभी कभी 1-2 हफ्ते लग जाते हैं आपको, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांड सेंटिटी, कॉपीड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करना अपने को प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल लिवाइस का आपने कोई प्रोडक्ट है, उसका कॉपीड प्रोडक्ट करके उसके ऊपर लिवाइस लिख के आप बेचने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अगर फ्लिपकार्ट ने नोटिस किया, या यानी कॉपी प्रोडक्ट विल नॉट आर नॉट सपोज टू बी सोल्ड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, ओरिजिनल प्रोडक्ट शुड बी देयर। ठीक है, तो अगर आप फैशन गारमेंट सेल कर रहे हैं तो भी चलता है, सब कुछ चलता है, बट कॉपीड डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि नाम कुछ है, गुची का बैग तो लिखा हुआ है लेकिन गुची का बैग नहीं है, वो कोई और प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, डुप्लीकेट कॉपी मार्केट से लोकल उठा के आप बेच रहे हैं, सो दैट शुड नॉट बी देयर, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज seller register with the Flipkart. Second step is seller should understand the policies and commercials कि उनको क्या चार्ज लगने वाला है, किस सिचुएशन में उनको पैसे मिलेंगे, किस सिचुएशन में उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एग्रीमेंट की अलाइनमेंट आपको देखना पड़ेगा, यू शुड बी अलाइन विद द एग्रीमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसीज को बारीकी से आपको समझना और पढ़ना होगा। नेक्स्ट, आपको सेलर लिस्ट तैयार करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को आपको बेचना है, उसका SKU नंबर क्या है, उसका ID नंबर क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो कितने कितने डायमेंशंस में अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा आपको एक्सेल फॉर्मेट में आपको रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद सेलर शुड मार्क अ सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे वो बेचना चाह रहा है, क्योंकि जिस प्राइस पे वो बेचना चाह रहा है उसमें से फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म की कॉस्ट को डिडक्ट करके फिर अमाउंट भेजता है। मान ले कि अगर आपने फ्लिपकार्ट पे पब्लिश किया है कि 100 रुपए में आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और फ्लिपकार्ट का अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, कुछ भी अगर अमाउंट जो भी डिसाइड हो पाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट मैकेनिज्म है जिसके जरिए से आपको पता चल जाता है कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा, तो आपको वो अमाउंट मिलने वाला है। 100 रुपए के 100 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, फ्लिपकार्ट अपना अमाउंट डिडक्ट करेगा, फिर उसके बाद बैलेंस अमाउंट आपको ट्रांसफर करेगा। फिर आपको ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रेनिंग मैनुअल भी देता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कराता है, वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं कि कैसे आप ऑर्डर को मैनेज करेंगे। अगर ऑर्डर आता है तो पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा। जब ऑर्डर आपने रेडी कर लिया तो लॉजिस्टिक्स कंपनी को कैसे पता चलेगा, फिर वो आके पिक करेंगे, इनकेस वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया बहुत अच्छी बात है, अगर किसी वजह से रिजेक्ट होके वो वापस आ गया तो क्या करना है। तो ये सारे प्रोसेस को समझने और करने में आपको कभी कभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम लग जाता है, बट ये है कि आपको एक एक स्टेप को समझ के आपको काम करना है। अब हमको ये देखना है कि भाई, जैसा मैंने कहा कि भाई फ्लिपकार्ट के बारे में इतनी बड़ी चीज क्या कहते हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि जितना, जैसे यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि $1 बिलियन इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि 2013-14 की बात कर रहे हैं, आज से हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जितना टर्नओवर एक बड़ी से बड़ी कंपनी का नहीं होता, उतना टर्नओवर एक उस कंपनी का हो गया जो जिसके पास की कोई दुकान नहीं है, राइट। दे डोंट होल्ड एनी प्रोडक्ट, एनी शॉप, बट स्टिल दे आर द बिगेस्ट सेलर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर ऑफ द प्रोडक्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है, आखिर क्यों इतना हो रहा है, वजह क्या है कि लोगों का एक्सेप्टेंस और लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे मिलने हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेल ज्यादा होता है, लोग परचेज भी ज्यादा करते हैं और उनको पता है कि उनके पैसा सेफ है। अगर उनको पसंद नहीं आया तो दे हैव रिटर्न पॉलिसी, बेस्ड ऑन दैट दे विल रिटर्न इट। ऑफ कोर्स इसके प्रॉस एंड कॉन्स है। फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ प्रोडक्ट्स स्टार्ट गेटिंग रिजेक्टेड, दैट मीन टू से you may face some loss, but thing is like, ऐसा नहीं है कि कोई बस इंटेंशनली मंगाता है और वापस भेज देता है, राइट। सो देयर आर वेरियस काइंड, और इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं उसके बारे में भी पूरा कैटेगरी है। ठीक है, अब जैसे देखें कि नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ टू बिकम ए सेलर ऑन अ फ्लिपकार्ट। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे जाना है, जो कि seller.flipkart.com। आप यहाँ पे वेबसाइट URL भी देख रहे हैं, अदरवाइज
आप फ्लिपकार्ट पे जब जाएंगे तो वहां पे भी रजिस्टर एज ए सेलर करके ऑप्शन आता है, वहां जाके आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ये एक एक स्क्रीन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको समझते हैं कि वहां पे क्या क्या होगा। ओके, ये एक स्क्रीन है कि जहां पे आपको बताया जा रहा है कि क्रिएटिंग योर सेलर्स अकाउंट। जब आप सेलर पैनल पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जहां कि आपको अपना नाम, आपका ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, कंफर्म योर पासवर्ड एंड देन रीटाइप योर पासवर्ड। जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम वेबसाइट का कोई नया अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं और वहां पे जो हम बनाते हैं उसके बारे में ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल है कि आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और रीटाइप अ पासवर्ड करना है। यहाँ पे देखिए आपको ये कहा जा रहा है ईमेल आईडी। अगर उस ईमेल आईडी से ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो ये ग्रीन टिक नहीं आएगा, रेड टिक आएगा। उसी तरह से जैसे अगर नाम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है तो ये ग्रीन टिक नहीं आएगा। ओके, सो यू शुड गेट ग्रीन टिक व्हेन यू आर पुटिंग अप द नेम। नेक्स्ट, जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे एक साइन अप नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपके मेल के ऊपर आ जाएगा और उस मेल में आपको वेरीफाई करना है। जैसे कोई मेल आता है कि वेरीफाई, क्लिक दिस लिंक टू वेरीफाई, उसी तरह से क्लिक दिस लिंक टू वेरीफाई करना है और आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। इस तरह का मेल आएगा, वहां पे क्लिक हियर आएगा, उसको क्लिक किया, या फिर नीचे एक लिंक आता है उसको कॉपी करके आप, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। वंस दिस प्रोसेस इज डन तो आपको क्या करना है, फिर से अपना यूजर नेम पासवर्ड लेके लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद आपको 3-4 स्क्रीन आएंगे, उसके ऊपर हमको काम करना है। सबसे पहली चीज आती है जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो वो कहता है कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर को वेरीफाई करिए। तो आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर यूज करना है जिसके ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ओटीपी आए, सारे नोटिफिकेशंस आए, वो वाला फोन नंबर यूज करना है आपको। ऐसा ना हो कि घर के किसी नंबर का दे दिए, वहां पे कुछ भी नोटिफिकेशन आ रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा, राइट। और इफ यू वांट टू कीप सम नंबर जो कि ऑफिस में रहे और 24 घंटे किसी की एक्सेसिबिलिटी में रहे तो आप वैसा भी कर सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू पुट अ नंबर जो कि एक्सेसिबल हो, जिसके ऊपर सारे नोटिफिकेशंस आए। एक बार जब वो नंबर आपका वैलिडेट हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो ओटीपी भेजेगा, फिर आप ओटीपी सबमिट करेंगे एंड देन योर फोन नंबर इज कंफर्म। एक बार जब फोन नंबर कंफर्म हो गया तो नेक्स्ट लेवल क्या आता है, एड्रेस वेरिफिकेशन आता है कि जो बिजनेस एंटिटी का जो एड्रेस है उसको आपको डालना है। ये नहीं कि आप कहां पे अभी ऑपरेट कर रहे हैं, जो बिजनेस एंटिटी जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, बिकॉज यू विल बी सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एज वेल। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। इफ यू आर सेलिंग मल्टीपल कैटेगरीज देन यू हैव टू चूज मल्टीपल कैटेगरीज, इफ यू आर सेलिंग वन देन यू हैव टू चूज वन, राइट। जैसे अब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर 100 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट इट्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। इफ यू आर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फैशन एक्सेसरीज बेच रहे हैं तो आपको फैशन प्रोडक्ट्स आपको चूज करना पड़ेगा। हेल्थ एंड ब्यूटी है या होम एंड किचन है तो ये होम डेकोर है, तो ये सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी चूज करना है। चूज करने के बाद मूविंग टू द नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो वहां पे सेलर इंफॉर्मेशन डालना है कि आपका एक्चुअल कंपनी का नाम क्या है, जो बिजनेस एंटिटी है उसका नाम क्या है, और उसका पैन नंबर, पैन डिटेल जो पैन कार्ड का होता है, आपको पैन नंबर भी डालना है और एट द सेम टाइम उसका फोटो भी आपको अपलोड करना है। उसी तरह से आपको टैक्स नंबर है, जीएसटी नंबर है, तो वहां पे जीएसटी नंबर भी डालना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अगर कोई भी चीज आप मिस करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई फेक इमेज अपलोड कर दें, उस वक्त अपलोड हो जाएगा, बट वैलिडेशन के अंदर, चूंकि ये मैनुअल वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बैंक अकाउंट को आपको इनकॉर्पोरेट करना है और यहाँ पे आपको सारी चीजों को डालना है। इसके लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका जो करंट अकाउंट है उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, सेविंग्स और पर्सनल का नहीं है। उसके बाद जो भी एड्रेस प्रूफ है वो आप एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे, और आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, जो भी चीजें हैं, जो भी फ्लिपकार्ट आपसे पूछ रहा है उसको आप अपडेट करते चले जाएंगे एंड देन इट विल कम टू बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। ये क्या करता है कि कुछ अमाउंट, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए आपके अकाउंट से
आपके अकाउंट में आना और जाना, यानी दे विल डिपॉजिट इट एंड टेक इट बैक, और दे विल डिडक्ट इट फ्रॉम योर अकाउंट एंड रिटर्न इट बैक, सो दैट ये वो देखना चाह रहे हैं कि आपको अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंच रहा है या नहीं रहा है, राइट। तो ये टू एंड फ्रो प्रोसेस, यानी वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी करेंगे, फिर रिटर्न आपके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे, फिर आपका अकाउंट आपके अकाउंट में वापस वो भेज देंगे। ये पक्का होता है, इसके अंदर कोई ग्लिचेस नहीं होते हैं, टू मेक श्योर दैट योर बैंक अकाउंट इज वर्किंग। क्योंकि मैनुअल कोई प्रोसेस नहीं होगा, एक बार ये आपका प्रोडक्ट बिक गया तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट आना है, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है, जो भी आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा वो आप सबमिट करेंगे एंड देन फाइनली इट विल बी डन। अब यहाँ पे आ रहा है, जो पहले आपने एड्रेस डाला था वहां पे आप कंपनी का एड्रेस डाले थे, यहाँ पे आपको स्टोर का डिटेल देना है जहां से आपके प्रोडक्ट को पिक करना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और हो सकता है और वेयर हाउस कहीं और हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर प्रोडक्ट सेल होता है तो लॉजिस्टिक्स वाला आदमी आके कहां से प्रोडक्ट उठाएगा, तो वो स्टोर का डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और जब आप वो सबमिट कर देंगे, सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर क्या हो गया कि आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन और ये सारे प्रोसेस में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। दे विल टेक देयर ओन टाइम, समटाइम्स 2 days, समटाइम्स 3 days। कभी कहते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट फिर से आप अपलोड कीजिए, ये वाला फिर से आप डिटेल सबमिट कीजिए, ये सारे प्रोसेस में कभी कभी टाइम लग जाता है, राइट। सो वंस ऑल दीज प्रोसेसेस आर थ्रू, यू विल गेट अ कंफर्मेशन मेल। आप अपने अकाउंट में जाके वहां लॉग इन करके ये भी देख सकते हैं कि वो पेंडिंग है या सारा का सारा प्रोसेस थ्रू हो गया, ठीक है। जब ये सारा प्रोसेस थ्रू हो गया तो उसके बाद आपको कहते हैं कि यू कंप्लीट योर प्रोफाइल, इन द सेंस ये सारी चीजें डिटेल डालने के बाद भी अगर आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। फाइनली जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है और स्क्रीन पे भी आ जाता है कि बिंगो सक्सेसफुली यू हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ अभी अकाउंट सेटअप हुआ है, प्रोडक्ट बिकना शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अकाउंट सेटअप हुआ है। नेक्स्ट आपको देखना है कि ये प्राइसिंग जो यहाँ पे डाला गया है ये कुछ चेंज हुए हैं रिसेंट पास्ट में, स्पेशली लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें चेंज भी हुई हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज फ्री में नहीं बिकता, प्लेटफॉर्म बायर से कुछ नहीं लेता, जो आप परचेज कर रहे हैं उससे कुछ नहीं लेता फ्लिपकार्ट, बट जो सेलर्स हैं उनके बिजनेस वैल्यू में से, उनके अमाउंट में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है। तो ये है कि जिन प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग 250 रुपए से कम है, वो हो सकता है कि अभी करंट सिनेरियो के अंदर वो 300 हो सकता है, 500 हो सकता है, 200 रुपए हो सकता है। तो क्या वैल्यू है वो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही, तो अगर उससे नीचे का है तो आपको कुछ नहीं होता। क्लोजिंग फीस क्या है, एक तरह से कहिए प्रोसेसिंग फीस समझ के चलिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट 250 से 500 के बीच में है उसका फेसबुक थोड़ा फ्लिपकार्ट थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करता है, जो उससे अबव अमाउंट का है उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज करता है, राइट। उसके बाद ये आपको जो स्क्रीन है ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए का है तो फ्लिपकार्ट का क्या कमीशन होगा, ठीक है, शिपिंग चार्जेस क्या होंगे, क्लोजिंग फीस क्या होंगे, मार्केट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे सर्विस टैक्स है, अब जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो किसी प्रोडक्ट का 18% है, 12% है, 15% है, 25% है, जो भी है वो कैलकुलेट करके फाइनली जो सेटलमेंट वाला अमाउंट है, यानी अगर 1000 रुपए में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो वेंडर को 898 रुपीज मिल रहा है। तो ये बीच के जो 100 रुपए 101 रुपए हैं ये कौन चार्ज कर रहा है, अलग अलग हेड्स के अंदर लॉजिस्टिक्स चार्ज है, प्रोसेसिंग फीस है, क्लोजिंग फीस है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, फ्री में तो कोई नहीं देता, राइट। तो आप अगर सेलिंग प्राइस डालेंगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो पता चल जाएगा। अगर आप रिवर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट है जिसका कि जो अमाउंट आप रिसीव करना चाहते हैं तो क्या सेलिंग प्राइस होगा, दोनों का कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो आप इस चीज को कैलकुलेट करके, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, आपको फैशन एक्सेसरीज भी है, ये भी है, वो भी है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी है, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट है, अगर हेडफोन, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही है, हेडफोन है, उसके ऊपर 25% या 20% के आसपास का जीएसटी है, वेरएज नॉर्मल मोबाइल है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 2%, 3%, 4% का उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन करके आपके सामने आ जाएगा कि इस रेट में ही आप जब इस एक्स अमाउंट में बेच रहे हैं तो आपको रिसीवेबल कितना होगा,
या आप रिसीवेबल डिफाइन कर रहे हैं तो आप किस प्राइस में आप बेच पाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद आपने सब कुछ सेट कर दिया, आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, वहां पे इमेजेस अपलोड कर दिए, एक्सेल शीट आपको देते हैं, वो सारी चीजें करके आपने अपलोड कर दिया, सारी चीजें हो गई। अब जब प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो क्या है, प्रोडक्ट रिटर्न केस के अंदर भी आपको ये समझना होगा कि किस तरह के, आपको अपना कंडीशन डिफाइन करना है कि किस केस के अंदर आप प्रोडक्ट रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग प्रोडक्ट रिटर्न एट ऑल, देन देयर विल बी अ टफ चांस कि आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि ई कॉमर्स में एक कंपलसरी चीज ये है कि आपको बेचने का भी ऑप्शन है और आपको रिटर्न लेना भी पड़ेगा, राइट। तो अगर कुछ प्रोडक्ट में फॉल्ट है तो you have to take the and or because of any reason if a buyer is sending it back, then what will be the process? तो आपको पेमेंट आया है या नहीं आया, राइट, तो कितना अमाउंट डिडक्ट होगा, क्या होगा, वो सारी चीजों का ये प्रोसेस है। फाइनली आपका प्रोडक्ट आपके गोडाउन पे वापस आ जाएगा। अगर आपको रिप्लेसमेंट करना है तो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट भेजना है, या फिर उसी अमाउंट को आपका होल्ड हो जाता है एंड देन इट विल बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट कैलकुलेशन। तो ये पूरी पॉलिसी है फ्लिपकार्ट के, राइट। उसी तरह से यहाँ पे ये है कि कैसे आपको, अगर आपका ऑर्डर आया तो कहाँ पता चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर टैब है, ऑर्डर टैब में जाके आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या ऑर्डर आया है, ठीक है। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं एज ए सेलर, अगर एज ए बायर अगर कोई रिटर्न कर रहा है तो क्रिएट ए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद वहां पे लॉजिस्टिक्स वाले के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वो आता है, वो पिक करता है। रिसेंट केसेस के अंदर देयर आर सम चार्जेस आल्सो लेविड व्हेन यू आर रिटर्निंग इट, राइट। बट अगर एक्सचेंज है, रिप्लेस है, तो अलग अलग नॉर्म्स हैं दैट वी हैव टू गो बाय, और ये सारी चीजों के प्रोसेस के बाद ही आपको। फ्लिपकार्ट के साथ एक एडवांटेज ये है कि आर्टिफैक्ट्स प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था जो कि पूरे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट या आर्टिजन्स हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, जिनके प्रोडक्ट्स कोई ब्रांड नहीं है बट कंसोर्टियम उसके ऊपर बेचना चाहे तो वो भी ये प्लेटफॉर्म पे बेच सकता है। इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट पे कैसे आप अपने सेल को बढ़ा सकते हैं, तो इसके अंदर ये है कि आप पेड प्रमोशन के अंदर भी जा सकते हैं। फ्लिपकार्ट आपको पेड प्रमोशन यानी एडवर्टाइजिंग ऑप्शन भी देता है। आप अपने प्रोडक्ट को एड्स के फॉर्मेट में लिस्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इन स्पाइक सेल, कि आप अपने प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, गुड पैकेजिंग की कैटेगरी में, बेटर कैटलॉगिंग। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस, जिस कैटेगरी के अंदर अगर आप लिस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को तो आपके प्रोडक्ट का सेल जो है वो बढ़ सकता है। बट ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन पेड ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि फुलफिलमेंट सेंटर यानी फ्लिपकार्ट के या अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट रखना चाहते हैं तो वो भी आपसे इन्वेंट्री ड्यूरेशन के लिए आपसे चार्ज करता है। कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं होता, हर एक चीज के लिए चार्ज करना पड़ता है और चार्ज देना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप जो भी फैसिलिटी पिक करेंगे उसके बदले में आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एडवांटेज सेलर और डिलाइटेड एज ए प्रायोरिटी, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक कमर्शियल कैलकुलेशन का है कि भाई किस तरह से होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सेलर हैं कैलकाटा में और आपका क्लाइंट केरला में बैठा हुआ है, तो जिस जोन में लॉजिस्टिक्स जोन के हिसाब से भी आपके कमर्शियल्स, आपके डिडक्शंस, आपके अमाउंट वेरी करते हैं, राइट। क्योंकि शिपमेंट सेंटर कहां से कहां तक जाएगा, कहां से पिक करना है और कहां तक जाएगा, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब आप साइन अप करते हैं तो आपको सारी चीजें पता चलती हैं, राइट। तो ये फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है। इसी तरह से बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको अमेजोन का भी बताऊंगा, क्योंकि अमेजोन भी मिलता जुलता ही है। कोई जो उसमें मेजर फर्क ये है कि वहां पे आपको फुलफिलमेंट सेंटर का बहुत ही एडवांटेजेस प्लान मिल जाता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट पे आपने देखा उसी तरह से
फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको ये ऑप्शन है कि भाई आप एज ए सेलर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, जो अमेजोन के बारे में अगर हम देखें तो ये है कि कस्टमर्स बाइज योर प्रोडक्ट, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां की बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यू कैन शेड्यूल योर पिकअप एज ए सेलर, यू कैन शेड्यूल कि किस टाइम पे आपको पिकअप है, ठीक है। उसी तरह से पिकअप पैकेजिंग है, अमेजोन आपको वेरियस पिकअप पैकेजिंग ऑप्शंस देता है कि कहां से पिक करना है, किस टाइम पे पिक करना है, एक्सप्रेस शिपमेंट है या क्या है, या किस तरह से डिलीवर करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अमेजोन आपको देता है। अब ये है जैसे 9 स्टेप्स हैं कि आप कैसे अमेजोन के ऊपर आप एज ए सेलर रजिस्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने 5-6 स्टेप्स फ्लिपकार्ट के लिए बताया वैसे यहाँ पे हैं। फिर आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज करना है कि आपको प्रोडक्ट कैटलॉगिंग करना है, इन द सेंस प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का वेट, ये सारी चीजें आपको मेंशन करके एक्सेल शीट में क्रिएट करना है। उसका फॉर्मेट आपको अमेजोन खुद दे देता है, आप उसके अंदर फिलअप करें, उसको अपलोड करें। नेक्स्ट है प्राइस मैनेजमेंट, कभी आपको बढ़ाना है, कभी आपको घटाना है, कभी आपको डिस्काउंट देना है, जो भी करना है। फोर्थ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप चाहें तो अमेजोन के इन्वेंट्री, जहां अमेजोन अपने प्रोडक्ट्स को रखता है, जिसको कहते हैं कि वेयर हाउस, अमेजोन वेयर हाउस या फुलफिलमेंट सेंटर, AFS, अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, ठीक है, AFC, ठीक है। अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर भी आप अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, बट यू हैव टू पे फॉर दैट, और एल्स यू कैन कीप इन्वेंट्री इन योर, और आप अपने ऑप्शन के अंदर दिखा सकते हैं कि 50 है, तो जैसे जैसे सेल होता जाएगा वहां पे इन्वेंट्री घटता जाएगा और लास्ट में आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर ऑर्डर मैनेजमेंट आता है, इफ यू रिसीव एन ऑर्डर हाउ यू विल गेट टू नो, कैसा किस फॉर्मेट में इनवॉइस बनाना है, क्या पैकेजिंग होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आप करेंगे। वंस योर प्रोडक्ट, यू आर रेडी विद द प्रोडक्ट, पैकेजिंग करके आप रेडी किए हैं, जैसे ही आप रेडी करेंगे आपको ट्रिगर करना है लॉजिस्टिक्स पार्टनर को कि भाई वो आके आपके पास से प्रोडक्ट उठाएं। तो अगर आप अपने वेयर हाउस से सेंड कर रहे हैं तो वो आपके पास आएगा, अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस से सेंड कर रहे हैं तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन के वेयर हाउस पे जाके वहां से वो उठा लेता है। फिर रिफंड और रिटर्न पॉलिसी की बात आती है। यहां तक तो सही रहा कि प्रोडक्ट चला गया, वो बिक गया, कस्टमर हैप्पी है, बट इनकेस किसी वजह से कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है तो वो अपने आप में पूरा, जो अभी तक फर्स्ट से लेके 6 स्टेप तक आया, तो पूरा का पूरा तो नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर और शिपमेंट जैसे पिक करते हैं वैसे ही रिटर्न करने का ऑप्शन होता है। तो कस्टमर के पास से पिक करना है, फिर उसके बाद वो कहाँ आएगा, वो फिर से इन्वेंट्री सेंटर पे ही आएगा, जहां से कंपनी ऑनर उसको पिक करके उसको रिप्लेसमेंट देगा। फिर पेमेंट सेटलमेंट होता है, और फिर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग हो है कि भाई कितना बेचा, कितना आया, कितना बिजनेस आपने लगाया, कितना आपको रिटर्न आया, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आया, इस सारा का सारा आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट्स 9 ऑप्शंस होते हैं जो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है कि कैसे ये काम करता है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहला स्टेप है कि आप अपने प्रोडक्ट और इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ पीसेस में ये अवेलेबल है, कस्टमर विल सी योर प्रोडक्ट, कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट, यू शिप योर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, एंड देन पेमेंट आपके पास आ जाता है। ये वन वे प्रोसेस है, ठीक है। जब ऑर्डर आता है तो ये कैसे होता है कि जैसे ही न्यू ऑर्डर प्लेस होता है, यानी कोई भी बायर अगर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो क्या होता है कि आपको बायर, जो सेलर ऑप्शन है, जो सेलर मोबाइल ऐप है या वेबसाइट के ऊपर ही आप जब लॉग इन करेंगे तो वहां पे आपको ऑर्डर डिटेल आएगा। होता यह है कि आपको SMS भी आएगा, आपको ईमेल भी आएगा, सो दैट एवरी पॉसिबल ऑप्शन, सो दैट यू बीइंग ट्रिगर्ड देयर इज एन ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर आता है उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर अवेलेबिलिटी, अगर वो इन्वेंट्री रेडीमेड प्रोडक्ट है तो इमीडिएटली आप पिकअप के लिए कहते हैं, या फिर अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर से वो शेड्यूल करके पिक हो जाता है। अगर उसको रेडी करना है, कस्टमाइज प्रोडक्ट उसको रेडी करना है, यू विल से 3 days आफ्टर ऑर्डर, 4 days आफ्टर ऑर्डर, 7 days आफ्टर ऑर्डर। आपको एक टेन्योर डिफाइन करना पड़ता है, कितने टेन्योर में आप प्रोडक्ट रेडी करके शिप करेंगे। जैसे ही शिप होता है, जैसे ही प्रोडक्ट रेडी होता है, आपको अमेजोन के पैकेजिंग मटेरियल को यूज करते हुए उसे रैप करना है, पैकेजिंग करना है। फिर उसके बाद आपको डिस्पैच शीट क्रिएट करके सबमिट करना है कि ये प्रोडक्ट्स इस ऑर्डर के रेडी हैं। तो लॉजिस्टिक्स वाला आएगा, आपके प्रोडक्ट आपसे प्रोडक्ट लेगा। उसके बाद इंडिया के अलग अलग कॉर्नर में, चूंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल ऑर्डर्स आर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो हर सेगमेंट के अंदर, हर सेक्टर के अंदर वो चला जाएगा।
फिर आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं कि जो आपने भेजा था प्रोडक्ट वो पहुंचा नहीं पहुंचा। अगर कस्टमर ने पिक कर लिया है, ले लिया है, तो भी आपको मैसेज आ जाता है। अगर सीओडी है, पेमेंट कलेक्ट हो गया, तो भी आपको मैसेज आ जाता है। अगर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया है या किसी वजह से वो रिटर्न हो जा रहा है, एड्रेस इज इनकरेक्ट, वॉट एवर इट इज, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने ऑर्डर को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि अमेजॉन का बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो फुलफिलमेंट सेंटर है, जिसकी वजह से अमेजॉन ये कहता है, एक्सप्रेस डिलीवरी की बात करता है कि विद इन फ्यू आवर्स योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये वो प्रोडक्ट हैं जो फिनिश प्रोडक्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या वैसे प्रोडक्ट हैं जो कि बल्क लेवल पे वेयर हाउस के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, जो कि खराब नहीं होता। ऑफ कोर्स आपका वेजिटेबल इसके अंदर नहीं होगा, पेरिशेबल प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं होगा। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स अमेजॉन ने डिफाइन कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट अमेजॉन के फुलफिलमेंट सेंटर पे रहे, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो बार बार चीजों के लिए आपके पास नहीं आएगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती रहेंगी और आप कर सकते हैं, राइट। तो फुलफिलमेंट सेंटर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ई कॉमर्स बहुत ही तेजी से बूम हो रहा है, राइट। तो ये ओवरऑल आपके लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग की बात है, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के प्लेटफॉर्म की बात मैंने की। अब आप लोग चाहें तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के एफिलिएट पार्टनर्स भी बन सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे ओपन इट, समटाइम्स दे क्लोज इट, राइट। तो जब भी ये ओपन करते हैं, चाहे तो आप उसके एक पर्टिकुलर कैटेगरी का आप चूज कर सकते हैं या मल्टीपल कैटेगरीज को आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म के एफिलिएट चैनल्स को ज्वाइन करके आप भी बिजनेस कुछ रन कर सकते हैं, कुछ कमीशन और कुछ मनी आप जनरेट कर सकते हैं। ये ओवरऑल ई कॉमर्स और एफिलिएट से रिलेटेड आज का टॉपिक था, जो कि एक तरह से कहिए कि ये थियोरेटिकल है, बट एट द सेम टाइम these are only the processes which are involved. Okay, so over to you guys. I understand कि ये एक बहुत ही फास्ट ट्रैक पे मैंने इस चीज को किया है, बट एट द सेम टाइम आई विल शेयर दीज डॉक्यूमेंट्स सो दैट आप स्लोली भी इसको पढ़ सकें, देख सकें, और whenever you want to sell your product, you can go through that session and then you can understand it. Okay. Any questions from your side? I will be happy to answer. Paramita has said, excellent session. Thank you very much, Paramita. और किसी को कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, otherwise we'll close off and then tomorrow I'll take another session. Couple of topics are left and then finally we'll discuss on closing topics as well on Friday or something. ठीक है, एक व्हाट्सएप मार्केटिंग मेरी तरफ से है, जो कि व्हाट्सएप मार्केटिंग का सेशन मैं कर लूँगा कि कैसे आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आप कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं विद यूजिंग फ्री टूल्स, ठीक है। उसको मैं एक एड्रेस करता हूँ एंड देन देयर आर 1 or 2 टॉपिक्स दैट विल बी टेकन बाय मिस्टर उदिपन ऑफ PSA. टुडे आई हैड अ कॉल विद देम. Tomorrow again I will be having a call with them to understand, because कुछ मैनेजमेंट में शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा. New lady has joined, Miss Kanya Kumari has joined in place of Bapaditya, so they need certain information. So I have a call with them as well tomorrow at 6 o'clock. In case any information will come, I'll keep you guys posted. और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि और थोड़ा फोकस करना है, you guys can put a comment for that as well. I'll try to address it. Any questions, anything? And one more thing I was very happy to see, which I put in the group as well, कि भाई एक ने थोड़ी सी कोशिश की, मेरे ख्याल से रिमा रॉय, हर वेबसाइट स्टार्ट परफॉर्मिंग इन गूगल. आप लोग भी थोड़ी कोशिश कर लीजिए, शायद आना शुरू हो जाए. ओके, ऑल राइट गाइज, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. और आप लोगों ने अपना अटेंडेंस अपडेट करवा लिया है या उसके बारे में बात कर लिया है मैनेजमेंट से या नहीं किया है? ऑल ऑफ यू? हाँ सर, अटेंडेंस तो कर लिया सर. चलो ठीक है, गुड. ऑल राइट गाइज, देन सी यू टुमारो. टेक केयर.